Hello everyone, welcome back. Good morning. Welcome back to Dremati IAS YouTube चैनल। और आज हम लोग लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे 2022 के क्वेश्चन पेपर के। तो आज हमने उसी के आगे कंटिन्यू करना है एंड वी आर गोइंग टू complete the whole paper in today's class. I don't want to take a part 3 of this video, so I'll try कि आज हम बाकी के 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें। सॉरी 50 क्वेश्चंस को। ओके, तो शुरू करते हैं। चलो पैसेज आएगा, फटाफट से पैसेज पढ़ते हैं और फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। Natural selection cannot anticipate future environments on Earth. Therefore, the set of existing organisms that can never be fully prepared for environmental catastrophes that awaits life. An outcome of this is an extinction of those species which cannot overcome environmental adversities. This failure to survive in modern terms can be attributed to the genomes which are unable to withstand geological vagaries or biological mishaps. In biological evolutions on the Earth, extinction of species has been a major feature. The Earth may presently have up to 10 million species, yet more than 90% of the species that have ever lived on the Earth are now extinct. Once again, the creationist doctrines fail to satisfactorily address why a divine creator will firstly bother to create millions of species and then allow them to perish. The Darwinian, okay, that's very long passage. The Darwinian explanation of extinct life is once again simple, elegant, and at once convincing. Organisms go extinct as a function of environmental to biological assaults for which their inheritance deemed them ill-equipped. Therefore, the so-called Darwinian theory of evolution is not a theory at all. Evolution happens. That is a fact. The mechanism of evolution is amply supported by scientific data. Indeed, to date, no single geological, botanical, zoological, paleontological, genetic and physical evidence have refuted either of a certain two main Darwinian ideas if religion is not taken into consideration. Darwinian laws are acceptable just like the laws proposed by Copernicus, Galileo, Newton and Einstein, sets of natural laws that explain natural phenomena in the universe. तो एवोल्यूशन की बात हो रही है कि जो एवोल्यूशन और एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, अगर कोई स्पीशीज उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरमेंट्स ऑन द अर्थ एज। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जब हमने फर्स्ट सेंटेंस ये था कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमारा फ्यूचर नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि species not fully prepared to face the environmental changes that await them will face extinction. Yes, true. All the existing species would get extinct as their genomes will not withstand. देखो all लिखा हुआ है, extreme sentence हो गया, all तो नहीं होगा लेकिन काफी सारी species ऐसी होंगी जो extinct हो जाएंगी. Inability of the genome to withstand environmental changes would result in extinction. This is also good. Extinction of a species is a common feature. एक्सटिंक्शन ऑफ अ कॉमन, ये भी कॉमन फीचर है क्योंकि 90% से ज़्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो जो भी मतलब है वो एक्सटिंक्ट होती रहती हैं। 1, 3 and 4 सी पार्ट विल बी अ फाइनल आंसर। 32 क्वेश्चन नंबर 32, द पैसेज सजेस्ट द डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल बिकॉज it does not certify the creationist doctrine. No. Extinction is a function of environment and biological assaults. No. There is no evidence to refute it. No. Existence of organisms is attributed to a creator. Creator के बारे में तो बात हुई है वैसे। ओके, वो हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो डार्विनियन थ्योरी है इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल, क्योंकि एवोल्यूशन होता है और वो एक फैक्ट है। इसलिए जो डार्विनियन बोल रहा है वो फैक्चुअल चीजें बोल रहा है, इट इज नॉट थियोरेटिकल। ठीक है, there is no evidences to refute it. उसके पास कोई भी ऐसा
द मैकेनिज्म ऑफ एम्प्लाई सपोर्टेड बाय साइंटिफिक डेटा, देयर इज नो सिंगल जीरो. ओके, देखो लिखा तो है फिजिकल एविडेंस दैट हैज रेफ्यूटेड ईदर और सर्टेन टू मेन डार्विनियन आइडियाज. ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है, तो सी पार्ट के साथ हम लग जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33. विद द रेफरेंस टू द पैसेज assumptions बतानी है. ओनली स्पीशीज दैट हैव द एबिलिटी टू ओवरकम द एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ विल सर्वाइव एंड परपेचुएट. जिनके पास एबिलिटी है एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ से ओवरकम करने की, वो ही सर्वाइव कर पाती हैं. More than 90% of the species on the earth are in danger of getting extinct due to drastic changes in the danger की तो बात हुई नहीं है, बट उन्होंने ऐसा बोला है कि जितनी स्पीशीज थी उसकी 90% एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. फ्यूचरिस्टिक बात नहीं हुई है अभी हमारे पास. डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल आ गया. देखो सारे नेचुरल फिनोमेना को थोड़ी डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना. तो सिर्फ 1 को लेके चलेंगे हम, ओनली ए. ठीक है, ओनली फर्स्ट पार्ट. Passage number 2. With steady economic growth, higher literacy and increasing skill levels, the number of Indian middle class families have gone up exponentially. Direct results of affluence have been changes in dietary patterns and energy consumption levels. People have moved to a higher protein-based diet like milk products, fish and meat, all of which need significantly more water to produce than the cereal-based diets. Increasing use of electronic and electric machines, gadgets and motor vehicles need more and more energy, and generation of energy needs water. मतलब एनर्जी के बारे में बात हो रही है. क्रक्स क्या बता रहा है? पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद मेनली इंडियन. नहीं, ये तो कहा ही नहीं है. India needs to focus on developing agriculture productivity and capacity of more energy generation in coming years. ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एनर्जी जनरेशन के बारे में हमें बात करनी चाहिए. मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स रिजल्ट्स इन द चेंज इन कल्चर. नहीं, ये भी बात नहीं हुई है. वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड्स टू. नहीं, वाटर मैनेजमेंट की भी बात नहीं हुई. बी पार्ट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ 35 से एप्टीट्यूड और रीजनिंग शुरू हो रही है. How many seconds in total are there in X weeks, X days, and X hours, X minutes, and X seconds? Okay, ये तो seconds ही है, तो X seconds तो रखेंगे ही हम. ठीक है, और ये हुआ minutes. minutes को अगर आप seconds में convert करो तो कितना करना पड़ेगा? 60x है ना. hours के लिए 3600x. ठीक है, आवर्स और फिर डेज में जाना है. नाउ 3600 इंटू 24x. ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा वीक्स का 3600 इंटू 24 इंटू 7 इंटू x. अब इन सबको ऐड करना है. तो पहले तो मुझे मेजरली दिख रहा है कि भैया यहाँ पर जो ये 3600 है, ये मैं कॉमन लेके ना बाकी चीज़ें अंदर डालती हूँ. ठीक है, इसको अलग रखो. ये हो गया 61x. इसको मैंने अलग करके ऐड करके यहाँ लिख दिया. बाकी चीज़ों को अलग से ऐड करते हैं. तो 3600 यहाँ आएगा 1 प्लस 24 प्लस 24 इंटू 7 करो. 7 4s are 28, 2 14 and 2 16, 168. और x यहाँ रहेगा. Now add all of these. 9 plus 4 13 193 into 3600. अब यहाँ 00 तो है ही, तो लास्ट में 2 जीरो तो आएंगी और ये आएगा 193 है ना. 193 को अगर आप 336 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट तो हमारे 00 ही रहने वाले हैं. उसमें हम 61 ऐड कर रहे हैं, तो लास्ट में 61 आना चाहिए. डी पार्ट शुड बी द फाइनल आंसर. एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना डी ही आ रहा है या नहीं. ठीक है, आई एम गोइंग विद द क्वेश्चन नंबर 36. यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू. आर जो है वो स्पाउस है क्यू का. आर और क्यू हस्बैंड वाइफ है. यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू. ओके, आर सन इज पी. आर का जो बेटा है वो पी है. बेटे के लिए हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए सर्कल यूज करते हैं. ठीक है, पीज डॉटर इज टी. पीज डॉटर इज टी. आर सन इज पी. पीज डॉटर, तो टी जो है वो डॉटर है, फीमेल है. ठीक है, U is the mother of T. U is the mother of T. ये भी लाइन हो गई हमारी. S is the daughter of U. और S जो है वो डॉटर है U की. There are 2 couples in the family. Which of the following is the correct? Okay.
तो हमें आर और क्यू का अभी जेंडर नहीं पता है, स्पाउस लिखा हुआ था बस वहाँ पे। आर क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कुछ नहीं कह सकते हम। आर जो है वो मदर है पी की, ये भी नहीं कह सकते। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू कह सकते हैं, क्यू की ग्रैंड डॉटर है टी, क्योंकि टी का हमें जेंडर पता है, क्यू और आर का हमें जेंडर नहीं पता है, तो वी कांट से क्यू क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार इज पी फ्रॉम क्यू, क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस बताना है। इन्होंने बोला क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस 18 है और पी और आर के बीच का डिस्टेंस 43 है, तो हमें कैसे पता चलेगा यार, दोनों ही इनसफिशिएंट है डी पार्ट, क्योंकि हमें उसकी प्लेसमेंट नहीं पता। अगर Q और R के बीच में 18 डिस्टेंस यहाँ है और 43 यहाँ है और फिर P है, तो हम बता सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Q और R के बीच में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है और फिर उसके बाद 18 इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 33 में से 25 किलोमीटर यहाँ हो और फिर P हो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 43 है, लेकिन P और Q का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो हमें नहीं पता, पोजीशन ही नहीं पता, तो हम आंसर कैसे करें, तो बोथ आर इनसफिशिएंट। 38th क्वेश्चन, ओके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास सिर्फ दो स्टेटमेंट्स हैं। ऑल पेन्स आर बुक्स, सारे के सारे पेन्स जो हैं वो बुक्स के अंदर हैं, और कोई भी चेयर पेन नहीं है, तो चेयर और पेन का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इन्होंने बोला ऑल चेयर्स आर बुक, सारी की सारी चेयर्स बुक्स हैं, हम नहीं कह सकते भाई। सम चेयर्स आर पेन्स, सम चेयर और पेन, पेन और चेयर तो दुश्मन है, मिल ही नहीं सकते। ऑल बुक्स आर चेयर्स, सारी की सारी बुक्स चेयर्स हो सकती हैं, हम कह नहीं सकते। नो चेयर इज अ बुक। ओके ना, देखो ऑल नो चेयर इज अ बुक, कोई चेयर बुक ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ द कंक्लूजन, इधर और हो सकता था इसमें, नो या ऑल या सम वाले में, लेकिन इधर और वाली ऑप्शन ही नहीं है, तो वी विल गो विद द डी पार्ट, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। अच्छा, सेम यहाँ पे आ गया, 3 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, मेरी 3 स्टेटमेंट्स। सम डॉक्टर्स और टीचर्स, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो टीचर्स हैं। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, सारे के सारे टीचर्स तो इंजीनियर्स हैं। और ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, और सारे के सारे इंजीनियर्स जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। ओके, कंक्लूजन 1, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स है, देयर इज अ पार्ट हियर। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सारे इंजीनियर्स, सारे तो नहीं है, कुछ हैं। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, 1 and 3 सी पार्ट। ठीक है, इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 40, 8 स्टूडेंट्स हैं जो कि सर्कुलर टेबल पे इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं। जब 8 का आता है ना, तो वो फटाफट से हमें सिटिंग अरेंजमेंट बनाना होता है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, फेसिंग द सेंटर, सेंटर में फेस कर रहे हैं। B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. C अगर यहाँ है मान लो, तो B और D ना तो यहाँ आएंगे और ना यहाँ आएंगे, तो B और D की ऑप्शन हमारे पास ये है। ठीक है, A sits in between E and D and F sits between B and H. ओके, तो A जो है वो E और D के बीच में बैठ रहा है। लेट्स से कि A हमारा यहाँ है, तो E और D यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि E मतलब D के बगल में बैठ नहीं सकता C के, तो E यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा। और फिर दूसरी ऑप्शन थी F sits between B and H, तो अगर हम F यहाँ ले रहे हैं तो B यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो सकती है, और या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, मतलब कि अगर C यहाँ है तो वी कैन से कि F यहाँ आया है और B और H यहाँ आए हैं, और A यहाँ आया है तो D और E यहाँ आए हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इन 6 जनों की पोजीशंस कुछ भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। तो B जो है वो क्या A और G के बीच में बैठ रहा है, G यहाँ आ जाएगा, फिर A और G के बीच में तो नहीं बैठ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। C इज ऑपोजिट टू G, देखो G तो यहीं आएगा दोनों कैटेगरीज में, जो दोनों ऑप्शंस में G तो है वो ऑपोजिट C के ही बैठ रहा है। E F के ऑपोजिट है नहीं है भाई, E और F ऑपोजिट नहीं है, ये भी नहीं है।
तो सी और जी तो ऑपोजिट हो सकते हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि सी, जैसे सी यहाँ है, ऐसी कोई ऑप्शन हो सकती है कि जी यहाँ ना हो, इसकी जगह पे कोई और ऑप्शन हो. लेट्स से कि एफ यहाँ है, ठीक है, तो बी यहाँ हो सकता है और एच यहाँ हो सकता है ना. पर उसके बाद ए जो है वो ई और डी के बीच में होना चाहिए, तो वो बन ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, है ना. तो नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो सी और जी जो है वो तो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ही होंगे. यही दो तरीके के पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. पॉसिबिलिटी 1, ये पॉसिबिलिटी 2. ठीक है, वी आर गोइंग विद द ऑप्शन बी पार्ट. ओके, नाउ लेट्स जंप अप टू द क्वेश्चन नंबर 41. पैसेज आएगा, फटाफट रीड करेंगे. For 2 or 3 generations past, ever increasing number of individuals have been living as workers merely, not as human beings. 2-3 जनरेशन से, मतलब 20-30 सालों से जो ह्यूमंस रह रहे हैं वो एक लेबर की तरह रह रहे हैं, एक वर्कर की तरह रह रहे हैं, rather than living as a human being. An excessive amount of labor is rule today in every circle of society, with the result that man's spiritual element cannot thrive. He finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities. He does not want to think, or he cannot even if he wants to. He seeks not self-improvement but entertainment, which would enable him to be mentally idle and to forget his individual activities. Therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theatre, more on newspapers and magazines and crime stories than on serious literature. ठीक है? The passage is based on the central idea. क्या है भाई? The great evil of our age is overstrain. Man cannot think well. Man cannot take care of the spiritual welfare. B part is the right answer. ठीक है, जब ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, जब ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है काम का, तो बंदा अपना सोच समझ सब भूल जाता है. ठीक है. Now 42. Man does not seek self improvement because he has no time to do so. उसके पास काम ही नहीं है, वो लेबर इतनी कर रहा है ना. डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं है, इंटेलेक्चुअली केपेबल भी है, और मेंटली आइडल नहीं. ठीक है. चलिए, passage number 2. The demographic dividend, which has begun in India and is expected to last another few decades, is a great window of opportunity. The demographic dividend is basically a swelling in the working age population, which conversely means that the relative ratio of very young and very old will for a while be on the decline. For the experience of Ireland and China, we know that this can be a source of energy and an engine of economic growth. The demographic dividend tends to raise a nation's saving rate, since in any nation it is the working age population that is the main saver. And since the saving rate is an important driver of growth, this should help alleviate the growth rate. However, the benefits of the demographic dividend depends on the quality of the working age population. And this implies bringing back the importance of education, acquisition of skills and human capital. Demographic dividend क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए. It is very basic for your economics. ठीक है, उसी के बेस पे पैसेज था. अब which of the following would invariably happen in a country when the demographic dividend has begun to operate? Illiterate person जो है वो कम हो जाएंगे. Yes, ये नहीं कह सकते. इलिटरेट कम हो जाएंगे ये नहीं कह सकते. दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो होगा नहीं. वेरी ओल्ड और वेरी यंग का जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा फॉर अ वाइल. द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज. इसका भी हम कुछ कंफर्म होके नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी. पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ भी सकती है. डेमोग्राफिक डिविडेंड है भाई, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और मतलब वो एज ग्रुप भी ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. तो वी आर गोइंग विद 2 ओनली. ठीक है. 43. Question number 44. With the reference to the passage, which of the following inferences can be drawn? Demographic dividend is an essential condition for a country for rapidly increase it. हाँ, demographic dividend जो है एक essential condition तो है ही
अपने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने की. प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एन essential condition for a country. For example, essential condition, promotion of higher education. Promotion of higher education तो नहीं कह सकते, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. One only, I will go with one only. Okay. Now question 45. 5 friends हैं, उन्होंने नोटबुक खरीदी है. Z ने परचेज करी 8 नोटबुक्स मोर देन X. Z purchased 8 more than X. P and Q together purchased 21. Q purchased 5 notebooks less than P. तो Q के पास P से 5 कम है. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम और P और Q की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पे डालो 2P minus 5 is 21. Then 2P will give you 26. P की वैल्यू आ गई 13. ठीक है. और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q की वैल्यू 5 कम कर दो 8 आ जाएगी. तो Q की वैल्यू 8 आ गई. X and Y together purchased 28 books. X और Y ने दोनों ने इकट्ठे मिलके 28 खरीदी हैं. P purchased 5 notebooks more than X did. अच्छा, तो P के पास 5 नोटबुक्स ज्यादा हैं X से. सॉरी, X से 5 ज्यादा हैं. ठीक है. तो P is equal to 13. तो X की वैल्यू क्या आ गई? अगेन 8 आ गई. X अगर यहाँ 8 है तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी. और Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. How is this possible? Sorry, 8 more than ना, तो Z is 16. Sorry, Z is 16. If each notebook is priced 40 rupees, then what is the total cost of all the notebooks? सारे notebooks को पहले तो काउंट करो कितनी notebooks परचेज हुई हैं. 16 plus 13, that will give you 29. 29 plus 8, 29 plus 8 will give you 37. 37 plus 20, 57. 57 plus 8 is 65 into 40. 0, 22, 26. A part. Easy. चलिए. Next question 46. A man started from home at 2:30. है ना, 2:30 बजे निकला है वो घर से अपने दोपहर को. And he drove to a village, arriving there when the village clock indicated 15:15, मतलब 3:15 पे. तो वो 2:30 बजे निकला, 3:15 पे पहुंच गया. कितना टाइम लगा? 45 मिनट्स. 45 मिनट्स लगे उसे. 25 मिनट में वहां रुका. ठीक है. 70 मिनट्स हो गए. ही ड्रोव बैक, मतलब 25 मिनट और लगे, तो कितना बज गए होंगे? 3:15 एंड 3:15 में 25 मिनट और ऐड करो तो 3:40 पे वो वहां से निकला है. ठीक है. 3:40 पे वो वहां से निकला. डिफरेंट रूट लिया उसने, जो कि 1.25 टाइम्स बड़ा था पहले वाले रूट से, और द फर्स्ट रूट एट अ रेट ट्वाइस एज फास्ट, रीचिंग होम एट 4 PM. तो वो 3:40 पे निकला और 4 बजे घर पहुंच गया. उसको कितना टाइम लगा? 20 मिनट्स लगे. ठीक है. एज कंपेयर टू द क्लॉक्स, द विलेज क्लॉक इज, ओ गॉड, आगे पीछे भी हो सकता है टाइम. इसका मतलब ये है. तो लेट्स से कि डिस्टेंस जो पहला फर्स्ट डिस्टेंस था वो x डिस्टेंस, x मीटर्स था. ठीक है. उसको कवर करने में 45 मिनट्स लगे हैं अकॉर्डिंग टू अस, बट इट कैन बी चेंजेबल. ठीक है. वापसी में वो जब आया है तो वो डिस्टेंस हो गया है 1.25x. ठीक है. और जो उसकी स्पीड थी, लेट्स से कि स्पीड उसकी y थी, तो अब जो वो वापस आ रहा था तो वापस आया वो 2y वाले स्पीड से. ठीक है. और वापस आने में उसको लगे हैं 20 मिनट्स. ओके. 20 से ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत. यह स्पीड का निकालो. चलो टाइम रहने देते हैं. टाइम हमारे हिसाब से 20 समथिंग है.
लेट्स से कि वो अगर 5-10 मिनट जो भी आगे पीछे चल रहा है, लेट्स से कि x मिनट्स आगे या पीछे है, सॉरी z मिनट, y मिनट्स z मिनट्स ले लेते हैं, z मिनट्स वो आगे या पीछे है जो घड़ी है गांव वाली, ठीक है। तो उसको जितना भी टाइम लगा होगा वो 45 प्लस माइनस z होगा, है ना, 45 प्लस माइनस z। और वही अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब एक्सचेंजेबल चलेगा। तो उसको वापस आने में 20 जो है उसमें माइनस प्लस z मिनट्स लग रहे हैं, और जाते टाइम जो उसकी स्पीड थी वो डबल हुई है ना, डबल हुई है। तो डबल होने में स्पीड का x डिस्टेंस है, और उसको जाते टाइम 45 प्लस माइनस z लगा है, ठीक है। तो x से तो x कट गया, राइट। अब 1.25, इसको यहां से z की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, बट दिस इज प्लस माइनस, वी डोंट नो इफ व्हाट हैपेंस हियर इज ओके। 125 को इसको हमने थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 25 5, दिस विल बी 4 एंड 5 4, तो 1/16 आ गया, ऊपर आ गया 1, तो ये हो गया 45 प्लस माइनस z इज इक्वल टू 16 2 ज़ा 32 माइनस प्लस 2z, ठीक है। पहले लेके चलते हैं कि प्लस है, यहाँ पे प्लस लेके चलते हैं, इधर माइनस लेके चलते हैं। तो 45 प्लस z इज इक्वल टू 32 माइनस z, तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। चलो नेगेटिव में भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया 2z, वहां जाके उधर जाके हो जाएगा माइनस 13, राइट, एंड z विल गिव यू 6.5 समथिंग, ठीक है। अब इसको उल्टा लेके चलो, 45 माइनस z इज इक्वल टू 32 प्लस 2z, सॉरी 2z था ये, क्या कर रही हूँ मैं, दिस विल बी 3z नाउ। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। और यहाँ पे माइनस किया, उधर प्लस करा, तो ये वहां जाके प्लस हो गया 3z, और ये यहाँ आके माइनस हो गया 13। अगेन z इज गोइंग टू बी 4.5 समथिंग, तो 4.5 मतलब 5 मिनट्स ले लो, तो 5 मिनट्स जो है वो वहां पे हमारे गॉड 5 मिनट्स स्लो है, विलेज की जो वॉच है वो 5 मिनट्स स्लो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, अ पर्सन वांट्स टू, क्या हो रहा है ये, जस्ट अ मिनट, चलो। अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स टू अमंग 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चों को उसने पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ए को मिले डबल पेन्स जितने बी को मिले थे, एंड 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, और सी से 3 गुना ज्यादा, और डी से 4 गुना ज्यादा, और ई से 5 गुना ज्यादा, और 6 गुना ज्यादा एफ से, ठीक है। What is the minimum number of pens X should buy so that number of pen each one gets is an even number? तो हमें बताना है मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर हो जो इन सबका क्या हो, 2 3 4 5 एंड 6 का एलसीएम होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। इसका एलसीएम क्या निकलेगा बताओ, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 is 60, तो 60 मुझे एलसीएम मिल रहा है इन सबका। तो 60 लेके चल रहे हैं, ए की वैल्यू को हम 60 लेके चल रहे हैं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और सी की वैल्यू हो जाएगी 20, और डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 1 4 4 15, ठीक है। ई की वैल्यू हो गई 12 एंड एफ की वैल्यू हो गई 10। अब इन सबको आपने ऐड करना है, ठीक है, जो भी वैल्यूज आई हैं, क्योंकि एक्स इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी, राइट। तो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 10 100, ठीक है। 120 135 140
47. A part will be the final answer. Easy question. Now question number 48. Six persons A, B, C and D and F are sitting equidistant from each other in a circular table पर 6 जने बैठे हुए हैं, 4, 5, 6. ठीक है. अब हमें बताना है कि A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा बंदा बैठा है. B is sitting opposite to C and D is sitting opposite to E. F is sitting on the immediate left of B. मैं स्टेटमेंट 2 से स्टार्ट कर रही हूँ. पहले B के इमीडिएट लेफ्ट में F बैठा है. सिर्फ अकेला स्टेटमेंट 2 से तो बात बनेगी नहीं, ये अकेला तो सफिशिएंट नहीं है. ठीक है. लेकिन हम स्टेटमेंट 1 को अगर इसके साथ लेके चलें तो B के ऑपोजिट C बैठा है, तो यहाँ पे बैठा है C, और D जो बैठा है वो E के ऑपोजिट बैठा है. तो D या E यहाँ बैठेंगे, कैसे भी बैठ सकते हैं, है ना. तो A यहाँ होगा. हमें बताना है कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए. लेफ्ट के इमीडिएट लेफ्ट पे यहाँ पे डी और ई में से कोई भी हो सकता है. तो हम सफिशिएंटली ये नहीं कह सकते कि डी है या ई है, दोनों मिला के भी सफिशिएंट नहीं बन रहे हैं डी पार्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मनीषा की एज क्या है. मनीषा जो है वो अपनी मदर से 24 साल छोटी है. ठीक है. 5 साल बाद द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर वुड बी इन अ रेशियो 3:5. 5 साल बाद मनीषा की एज में 5 साल मिलाओ और उसकी मदर में 5 साल मिलाओ तो उनका रेशियो 3:5 आता है. ठीक है. और मनीषा जो है वो 24 साल यंगर है. इसको छोड़ो, पहले इसी से निकाल के देखते हैं इफ वी आर गेटिंग द आंसर. ठीक है. 5m + 25 विल गिव यू 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हर मदर प्लस 15. ठीक है. यहाँ से भी हमें रेशियो ही मिलेगा बेसिकली. ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हर मदर माइनस 5 टाइम्स ऑफ मनीषा's एज. अब हमें इसको यूज करना पड़ेगा. मनीषा जो है वो अपनी मदर से 24 साल छोटी है. ये आप यहाँ डालोगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हर मदर्स एज माइनस 5 टाइम्स ऑफ हर मदर एज माइनस प्लस हो जाएगा एंड दैट विल गिव यू 120. राइट. तो यहाँ पर हुआ -110 और यहाँ पे हुआ -2 ऑफ हर मदर्स एज. तो मदर की एज तो यहाँ से निकल आई 55. ठीक है. और वो उससे 24 साल छोटी थी, तो मनीषा की एज कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी. तो दोनों यूज करने के बाद हमें पता चल रहा है मनीषा की प्रेजेंट एज क्या है. तो बोथ आर सफिशिएंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50. Everyone, we are on the question 50. 6 लेक्चर्स हो गए हैं 1 घंटे में, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू होने थे और 2 बजे तक चलने थे. हमें बताना है कि थर्ड पीरियड किसका लगा है. F का लेक्चर जो है वो A से पहले है और C के बाद है. A से पहले F का लेक्चर लेकिन C के बाद है. ठीक है. There is no lecture after B. तो जो 6 पीरियड्स लगे हैं उसमें लास्ट पीरियड जो है वो बी का लगा हुआ है. अब बी तो लास्ट में लगा हुआ है. अब इसके बीच में यहाँ कितने हैं हमें कुछ नहीं पता है. तो हमारे लिए तो ये इनसफिशिएंट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. सॉरी, क्रॉस क्यों करा है मैंने. डी पार्ट विल बी द फाइनल आंसर. हमारे लिए दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनसफिशिएंट है. चलिए पैसेज पे आते हैं फटाफट से. Passage number 1. An economic organization allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to a very good life of leisure, and much leisure is apt to be tedious except to those who have intelligent activities and interest. If a leisured population is to be happy, it must be an educated population and must be educated with a view of enjoyment as well as the direct usefulness of technical knowledge. Okay. हमें बताना है कि बेस्ट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओनली द देखो ओनली आ गया, ऑल आ गया, पहले ही कर दो. An increase in educated population of a country leads to an increase in happiness of its people. Use of machine should be encouraged in order to create large leisured population. ये भी गलत है. C part will be the correct answer. चलिए नेक्स्ट पैसेज फटाफट से इसको पढ़ेंगे.
If presents bring less thrill now that we are grown up, perhaps it is because we have too much already, or perhaps it is because we have lost the fullness of the joy of giving, and with it the fullness of the joy of receiving. Children's fear are poignant, their miseries are acute, but they do not look too forward nor too far backwards. Their joy are clear and complete because they have not yet learned always to add but to every preposition. Perhaps we are too cautious, too anxious, too skeptical. Perhaps some of our cares would shrink if we thought less about them and entered with more single minded enjoyment into the happiness that comes our way. Very nice passage. With the reference to the passage, which one of the following statements is correct? It is not possible. It is not possible. तो possibility खत्म कर दी इन्होंने. There can be more than one reason why adults feel less thrilled about by presents. The author does not know why adults feel. ऐसा कुछ नहीं है. Have less capacity भी नहीं है. There एक से ज़्यादा reasons हो सकते हैं कि adults less thrilled क्यों feel करते हैं presents को लेके. ठीक है. Now question number 53. The author of the passage is against worrying too much about past and future, being in a habit of thinking about presents, not being thrilled by new things, giving and receiving joy only partially. ये है ऑथर जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि हमें अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए. चलिए 54th question. A, B and C represent distinct non-zero digits. Suppose x is the sum of all the possible 3-digit numbers formed by A, B, C without repetition. The 4-digit least value of x is sum of all possible 3-digit numbers formed by A and B without repetition. सबसे छोटा नंबर तो हम यही ले सकते हैं कि 1 2 3 ले लिया, फिर 2 3 1 ले लिया, ठीक है, फिर 2 1 3 ले लिया, 1 32 ले लिया, 3 2 1 ले लिया और 3 1 2 ले लिया. इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा? 3 2 बार हो रहा है, दैट इज 6 प्लस 4 12 आ गया. 12 यहाँ आएगा 13 1 3 3 2. लीस्ट 4-digit वैल्यू ऑफ एन एक्स. ठीक है भैया, ये तो आ गया हमारा आंसर. 3 greatest value of x is the 3-digit greatest value of x. थ्री डिजिट तो हो ही नहीं पाएगा ना. x क्या है? सम है ऑल पॉसिबल 3-digit नंबर्स का जो कि a और b से बन रहे हैं विदाउट एनी रेपिटेशन. तो सबसे लीस्ट वाला तो हमने निकाला ही, और वो 4-digit का ही बन पा रहा है. तो 3-digit में हम कैसे आएंगे? हमें तो सारा सम लेना है ना, ऑल पॉसिबल 3-digit नंबर्स लेने हैं, तो ओनली 1 जाएंगे. ठीक है. चलिए 55. There is a numeric lock which has 3-digit pin. The pin contains 1 to 7 digits. There is no repetition of digits. The digits in the pin from left to right are in decreasing order. Any 2 digits of the pin differ by at least 2. How many maximum attempts? अच्छा देखो, सबसे बड़ा decreasing order है, 7 से start करते हैं. At least 2 का difference हमें लेना है. 5, फिर 2 का difference ले लिया, 3 ले लिया. At least 2 का लेना है. ठीक है. 7 से शुरू करा, हम यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं. हम यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं. यहाँ पर हम 5 ले लिया, लेकिन 3 की जगह पे 2 ले लिया. 7 5 1. ठीक है. ये हो गया 7 से शुरू होने वाले. नाउ लेट्स ट्राई विद 6 4 2 6 3 1. ठीक है. एंड 6 4 1. यही पॉसिबल है. 5 से लें तो बन पाएगा. 5 3 1 एक ही बन पाएगा. कितने हैं भाई टोटल? फटाफट से कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बन रहा है मेरा. और भी कुछ बन सकता है क्या?
डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा, है ना। अच्छा यहाँ पर जैसे मैंने ये लिया 742, तो 741 भी तो ले सकते हैं, है ना। हाँ तो 10 हो गए सी पार्ट। चलिए 56. There are 8 equidistant points on a circle. How many right angle triangle can be drawn using these points as vertices and making the diameter as one of the triangle? ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है तुम लोगों को टॉपिक वाइज जब मैं कराती हूँ। 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लिए, अब हमें डायामीटर तो लेके चलना है, ठीक है। तो आई एम मेकिंग एक ट्राइंगल ये ले लिया डायमीटर, ठीक है। दूसरा डायमीटर मैं ये वाला ले लेती हूँ, 2 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। ये हो गया तीसरा ट्राइंगल, ठीक है। 3 हो गए और इसी के ऑपोजिट साइड बन जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। डायमीटर तो लेके ही चल रहे हैं। डायमीटर कितने बना सकते हैं हम? एक ये बनाया है, इससे एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, एक ये बनाया, इससे एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। अभी एक और बचा है, कौन सा बचा है? ये वाला, यहाँ से भी तो एक ट्राइंगल बनेगा, तो 2 और बन जाएंगे, मतलब टोटल 8 बन जाएंगे, ठीक है। 4 डायगोनल्स बना सकते हो आप 8 वर्टिसेस लेके, और 4 से हर डायमीटर से 2 ट्राइंगल बन पाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन पाएंगे कि ज्यादा बन पाएंगे? जस्ट अ मिनट। देखो एक सेकेंड, राइट एंगल ट्रायंगल की तुम्हें प्रॉपर्टी याद है? डायमीटर से लो और वर्टेक्स पे कहीं पे भी बनाओ तो वो आपको 90 डिग्री का एंगल ही देता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही देगा। ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा और ये वाला भी। तो एक डायमीटर से 1 2 3 और नीचे 3 और बनेंगे, 6 बन रहे हैं। और ऐसे हमारे कितने बन रहे हैं डायमीटर? 4 बन रहे हैं, तो 24 होगा इसका आंसर, ठीक है। ये मैंने कराया था, तुम्हें क्लास में भी कराया था, मुझे याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57th. 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days? तो हमें बताना है कि 12 men और 24 women कितने दिनों में काम कर लेंगी, ठीक है। Now we don't know the efficiency of men and women. हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, men, women और ये x भी आ गया है, तो डेटा इज इनएडिक्वेट, ठीक है। अच्छा अब हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा अगर हम इसको 1261 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो बताओ 1261 क्या प्राइम नंबर है? इज इट अ प्राइम नंबर? और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या वो किसी से डिवाइड होता है? uh, 1261 के डिवाइजर्स बता दो मुझे। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये इसका जो डिवाइजर है वो है 1, 13, 97 एंड 1261, ये इसके डिवाइजर्स हैं। तो 97 आ रहा है, 97 यहाँ आ रहा है, 97 से ये कटेगा, कितना? 13 आएगा। और 13 की टेबल का कोई है ऊपर नंबर? 13 की टेबल में 97 आता है भाई, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, पूरा पूरा कट हो रहा है, ठीक है। चलिए 59. Consider the following statements in respect to the rectangular sheets of length 20 centimeter and breadth 8 centimeter. Is it possible to cut the sheet in exactly 8 squares? Okay.
20 ये है लेंथ इसकी, और यहाँ से 8 जो है वो उसकी ब्रेथ आ रही है, ऐसा रेक्टेंगल है। तो क्या इससे हम 4 स्क्वायर शीट्स निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली 4 बनानी है, मतलब इससे ज्यादा नहीं बनानी है, ठीक है। 8 4 इज 24। तो अगर हम 8 यहाँ से ले रहे हैं तो 8 हमें यहाँ से भी तो लेना पड़ेगा ना, बट वो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये 20 है और 8 का डिविजिबल नहीं है। लेट्स टेक इट 4, ठीक है, हमने इसको आधा कर दिया, यहाँ से 4 लिया, तो हम यहाँ से 4 के कितने काट सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 काट सकते हैं। 4 5 से 20 होता है, 5 नीचे कट जाएंगे, तो 10 तो काट सकते हैं, 4 काटना मुश्किल है, एग्जैक्टली 4 तो नहीं होंगे। इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। क्या हम 10 ट्रायंगल्स काट सकते हैं इसके? दिस इज वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ 8 का जो वो बनता है 8 6 और 10, ये राइट एंगल ट्राइंगल का वो है ना, तो हम क्या इसको इस तरीके से काट सकते हैं? जो फर्स्ट वाला तो निकल ही गया बाहर, है ना, तो मैंने 8 ये ले लिया, 6 यहाँ से लिया और ऐसे डायगोनल बनाया, फिर एक ऐसे बनाया, हम 6 ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अगेन 6 लिया और फिर 2 ट्राइंगल काट दिए इसके, ठीक है, इक्वल एरिया के बनेंगे सारे। फिर 6 सेंटीमीटर लिया, 6 और 6 12 और 6 कितना होगा? 18 हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा इसे। ये 6 लिया और ये तीसरा 6 आ गया आपका, और ये 6 सेंटीमीटर हमने ऊपर नीचे से लिए हैं, और यहाँ पे हमने कितने बना दिए? 6 ट्राइंगल्स निकाल दिए। अब 6 3 से 18 होता है, अब ये बचा 2 सेंटीमीटर ओनली, है ना, और ये 8 है, तो यहाँ से तो हम 10 ट्रायंगुलर शीट्स तो नहीं निकाल पाएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद, वी आर गोइंग विद द डी पार्ट, नीदर 1 नॉर 2। 60th क्वेश्चन आ जाओ भाई फटाफट से, 20 मोर आर लेफ्ट। आज हम खत्म करके ही रहेंगे इसको, एक ही वीडियो में करना है खत्म आज। When 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y. 70%, 7 by 10 of x को अगर हम y में प्लस कर दें तो जो सम बन रहा है वो 165% है y का, ठीक है। तो 7 by 10 of x will be equal to 165 by 100 of y, ठीक है। ये 10 से ये कट गया, 70 by 65 is the ratio of y and x, तो मतलब क्या है? y जो है वो बड़ा है x से, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन 60% of a number z, 60% of a number z of a number x, सॉरी x ही हो रहा है, z नहीं है, x है, is added to another number z, then it becomes 165 of the value of z, मतलब 6 by 10 of x is equal to 65 by 100 of z। तो ये 10 से 10 कट गया, 6 by 65 का जो रेशियो बन रहा है वो आ रहा है z by x का, सॉरी 60 by 65। तो z की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू 65 थी, y की वैल्यू 73 थी, और z जो है वो 60 वैल्यू लेकर आ रहा है। तो x, z, x और y, a पार्ट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 61, पैसेज अगेन, हियर इट इज, छोटा सा पैसेज है, फटाफट खत्म करते हैं। The majority of people who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of others. They permit the newspapers and gossiping neighbors to do their thinking for them. Opinions are the cheapest commodities on the earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon by anyone who will accept them. If you are influenced by opinions when you reach decision, you will not succeed in any undertakings. ओके
क्या कहना चाह रहा है अभी पैसेज? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी, मनी की तो बात ही नहीं हुई, मनी की बात नहीं हो रही है. There are people who fail to accumulate money for their needs. There is no need to accumulate money. No. Most of the people do not accumulate money for their needs. क्यों नहीं accumulate कर पा रहे? Majority of people who fail to accumulate. Okay. So we are going to. There are people who fail to accumulate money for their needs. We are going to go with the best is A part. ठीक है. बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो मनी को अक्यूमुलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. मेन आइडिया क्या है? पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स. पीपल शुड अक्यूमुलेट एज मच मनी एज दे कैन. मनी अक्यूमुलेट की बात नहीं हो रही. नीदर गिव नॉट एक्सेप्ट ओपिनियंस. पीपल विल succeed in any undertaking if they do not accept at any opinion at all. ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया. इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. ए पार्ट शुड बी द आंसर. ठीक है. पैसेज नंबर 2 बहुत छोटा सा, ये तो फटाफट से पढ़िए. The social order is a sacred right which is basis of all other rights. Nevertheless, this right does not come from nature and must therefore be founded on conventions. Okay. With the reference to the above passage, convention are the sources of the rights of the man. Rights of the man can be exercised only when there is a social order. Only आ गया, extreme word आ गया, नहीं डाल सकते आप. Convention are the sources of the rights of the man. Convention जो है वो sources हैं rights of the man के. देखो इन्होंने बोला है right, this right. स्पेशली उस राइट के बारे में बात हो रही है, बाकी अदर राइट के बारे में बात नहीं हो रही है. तो सारे राइट्स के बारे में हम बात यहाँ पे भी नहीं करेंगे, नीदर नॉर पे जाएंगे. डी पार्ट हमारा आंसर होगा. 64th. Two candidates X and Y contested an election. 80% of the voters cast their vote and there is no invalid votes. ठीक है. 100 लोग थे, उनमें से 80 लोगों ने जाके वोट दिया, 20 लोग वोट देने गए ही नहीं. ठीक है. और यहाँ पे कोई नोटा की ऑप्शन नहीं थी, कोई इनवैलिड वोट्स भी नहीं थे. एक्स को 56% ऑफ दी वोट्स मिले और 56% ऑफ 80. 56% ऑफ 80 विल गिव यू व्हाट? ये आएगा तुम्हारा थोड़ा सा उसमें डेसिमल्स में आएगा, है ना. 44.8. तो 44.8 वोट्स एक्स को मिले. बाकी के कितने वोट्स बचे? 44 80 में से माइनस कर दो, आपका बचा 35.2, है ना. अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना हुआ. इन दोनों को माइनस करो, 0.6 आएगा और 14 में से 5 गया 9. 9.6 का मतलब है 1440 वोट्स. तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हुए? हमें 100 की वैल्यू निकालनी है. तो 1440 को आप 9.6 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है. डिवाइड करो. 3 4 12, 3 8 24. ठीक है. 32 बचा था नीचे हमारे पास, तो 4 से कट जाएगा 120. 4 8 32, 8 1 8, 1500. ठीक है. ए पार्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे फटाफट से. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर लीव्स द रिमाइंडर 3. ठीक है. सबसे बड़ी चीज देखो, आप इसको डिवाइड करके देख लो डायरेक्टली. 6 को डिवाइड करो यहाँ से. 6 1 6 बचा 4 46. 6 8 48 होता है, तो 6 7 42 लेंगे हम. फिर 43 आएगा, फिर 42. रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर 1, तो ऑप्शन गलत, हमें 3 चाहिए रिमाइंडर. ठीक है. फिर अगेन 47, फिर हम लेंगे दोबारा से 42. बचा कितना? 53 बचा, तो 8 48 लेंगे. अगेन रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 5 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया. इसको अगेन 6 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 48.
48 डायरेक्ट 48 से डिवाइड हो जाता है, इसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है। और अगर इसको देखो तो बचेगा 58, तो हमारा आ गया 9 सा 54, फिर 43 42 लेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है, तो 3 नहीं आ रहा है, तो सी पार्ट बच रहा है ओनली, जो रिमाइंडर 3 दे रहा है। ठीक है। 66th question, let p be a 2-digit number and q be a number consisting of same digits written in the reverse order। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपका आंसर आ रहा है 2430। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? अगर p को मैं ले लूं 10x प्लस वाई, तो q क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। और अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2430। ठीक है। हमें उसका बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें चाहिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट मीन्स 9x माइनस 9y की वैल्यू हमें चाहिए, मतलब x माइनस वाई को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली, और सारे 9 के मल्टीपल लिख दिए इन्होंने, बदतमीजों ने। ओके, लेट्स सी। 2430, we are having 0 in the end, so it should be something 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना? 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अरे इतना बड़ा नंबर भी दे दे, ये तो बात है ना। 2430, I am guessing that one of x और y is 5, तो let's take x as 5। ठीक है, ये हो गया 50 प्लस वाई, 10y प्लस 5 इज 2430। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारे पास आएगा 500y प्लस 10y स्क्वायर प्लस 250 प्लस 5y इज 2430। इसमें से 250 माइनस करना पड़ेगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इससे y आएगा हमारे पास। ठीक है, 505y 10y स्क्वायर प्लस 505y इज इक्वल टू, यहाँ से 250 माइनस कर दो, 80 380 380 12180 आना है। ठीक है, do you have any value for this question? अच्छा, मैं ना अपना कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगाना चाह रही हूँ, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, 3 1 3 3 24 3 से डिवाइड करा 6, तो 1 2 3 4, ओके, 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसका जो हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है, तो अब हमें यहाँ से नंबर्स चाहिए। 9 5 45, एक हमने 45 ले लिया है, और 3 3 9 27 इंटू 2 इज 54, है ना? तो 54 और 45, ये दो नंबर्स हमें मिल गए, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2430 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 9 है, तो वी विल गो विद आंसर डी पार्ट 9। ठीक है, इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो सॉल्व करते रह जाओगे, कुछ नहीं बनने वाला है, तो इसको भूल जाओ। थोड़ी सी ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ। इसके मैंने क्या करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करा है 2430 का,
और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाए जिससे मुझे पता चला कि 54 और 45 दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, और उसको मल्टीप्लाई करके 2430 आ रहा है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 है. ठीक है. नाउ consider the following statements in respect to two natural numbers p and q such that p is the prime and q is the composite number. Consider the following statements. दो नेचुरल नंबर्स हैं p और q. p जो है वो प्राइम नंबर है और q जो है वो कंपोजिट नंबर है. तो अगर हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या एक ऑड नंबर आएगा 2 इंटू 4 या फिर 3 इंटू 4. 3 कंपोजिट है, 3 और 2 प्राइम नंबर्स हैं, 4 हमारा कंपोजिट नंबर था, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ऑड नहीं है. कैन बी ऑड, क्या ऑड हो सकता है? तो अगर मैं 9 ले लूं तो 27 हो जाएगा. 3 9 27, तो ऑड हो सकता है. कैन बी ऑफ कोर्स. क्या q बाय p प्राइम नंबर होगा? क्या q बाय p प्राइम नंबर हो सकता है? हो सकता है. p और q अगर हम ऐड कर दें तो क्या प्राइम नंबर आ जाएगा? 3 प्लस कोई कंपोजिट नंबर लेना है 13, तो 16 आएगा. और अगर मैं कोई कंपोजिट नंबर लेना, सॉरी 15 लो और 2 प्राइम नंबर होता है और ऐड करके 17 आ गया जो कि प्राइम नंबर है. तीनों चीज़ें पॉसिबल है भाई. डी पार्ट. चलिए 68th क्वेश्चन. Between 3:16 p.m. and 3:17 p.m. both hour hand and minute hand coincide. 3:16 p.m. पे और 3:17 p.m. पे, मतलब 1 मिनट में ऑफ कोर्स कोइंसाइड तो करेगी भाई. आर हैंड तो वहीं रहती है, लेकिन मिनट हैंड 1 मिनट में पूरा सर्कल करती है ना मिनट हैंड. तो मिनट हैंड आर हैंड से टच करेगी, हर मिनट टच करेगी. बिटवीन 4:58 p.m. and 4:59 p.m. both minute hand and the second hand coincide. अच्छा, जस्ट अ मिनट. आर हैंड और मिनट हैंड जो है 3:16 p.m. और 3:17 p.m. में कोइंसाइड करेगी क्या? पॉसिबल है. देखो ये 3 बज रहे हैं और 15 पे भी वो यहीं होगी. 16 पे मिनट हैंड नीचे चली जाएगी, 17 में थोड़ी और नीचे चली जाएगी, तो शायद कोइंसाइड ना करे. तो फर्स्ट वाला कोइंसाइड नहीं होगा, ये वाला कोइंसाइड होगा, क्योंकि मिनट हैंड और सेकेंड हैंड की बात हो रही है. सेकेंड हैंड तो 1 मिनट में पूरा सर्कल घूम लेती है, तो वो तो हर मिनट कोइंसाइड करेगी मिनट हैंड से. तो सेकेंड इज ट्रू, बी इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू. ठीक है, क्योंकि मिनट हैंड थोड़ी नीचे आ जाएगी, आर हैंड को टाइम लगेगा उतना नीचे आने में. There are 2 containers X and Y. X contains 100 ml of milk and Y contains 100 ml of water. 20 ml of milk from X is transferred to Y. After mixing well, 20 ml of the mixture in Y is transferred back to X. X में 100 ml था, वो हमने Y इसमें बचा 80 और इसमें हो गया 120. 120 में क्या डिफरेंस है? 100 और 20 का. ठीक है, क्या रेशियो क्या बना? 5:1 का रेशियो बन गया. ठीक है, अब उसमें से 20 ml जो है वो वापस इसमें डाल दिया गया है. अब 20 ml इसमें वापस डालोगे तो उसमें क्या होगा? 20/6, 100/6 जो है ml वाटर आएगा. ठीक है, और 20/6 जो है वो आपका मिल्क आएगा. ठीक है. If m denotes the proportion of milk in X, okay, and n denotes the water of Y, proportion of Y in Y, proportion of water in Y, then what is the following is correct. देखो यहाँ से वाटर की वैल्यू, अब यहाँ से अगेन आप 20 ml निकाल रहे हो. ठीक है, 120 था, उसमें से 20 ml हमने निकाला, तो इसको 6 से डिवाइड करोगे अगर आप 20,
अच्छा, m denotes the proportion of milk in x milk in x is 80 plus 20/6, ठीक है, और n denotes the proportion of water in y, तो वो है 100 minus 100/6। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है ये निकालना है ना, तो इसको पहले आप सॉल्व करके देख लो। ये हो जाएगा 420 प्लस 440/6, है ना, और दैट विल गिव यू 42 20 83.33, ठीक है, और ये क्या देगा 500/6, तो 6 8 48 20 83.33 ही आ रहा है, सेम आ रही है वैल्यू ए और बी की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, द पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स ए बी सी डी एंड ई, जिसमें से बी सी डी और ई कॉरेस्पॉन्ड टू दीज एंगल्स, एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो 360 डिग्री होना चाहिए 5 में से, तो 90 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 75, 10 1 10 15 15 प्लस 4 19 19 प्लस 7 26 260 360, मतलब ए का जो एंगल बनेगा वो 100 डिग्रीज का बनेगा, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द आइटम ए, तो 100 डिग्रीज है, तो हमें परसेंटेज निकालनी है। 360 डिग्री का मतलब होता है 100%, ठीक है, और हमें 100 डिग्रीज का निकालना है, ये सॉल्व करना है हमने। ये गया 2 5 2 8 16, तो इट इज गोइंग टू बी 59, तो इट इज गोइंग टू बी 250/9 डी पार्ट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़ी सी हिम्मत बना के रखो, हम कंप्लीट करने वाले हैं इस पूरे PYQ को इस वीडियो के अंदर। पैसेज नंबर, अगेन पैसेज आ गया, टू एंकरेज रिसर्च इन वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, contemporary universities have encouraged research not only in those cases where research is necessary, but on all sorts of entirely unprofitable subjects as well. Scientific research is probably never completely valueless, however silly and insignificant it may seem. However mechanical and unintelligent the labor of researchers, there is always a chance that the result may be of the value to the invigilator of talent, who can use the facts and collected for him by uninspired but industrious researchers as the basis of some fruitful generalization. But where research is not original but consists in the mere rearrangement of existing material, where its object is not scientific but literary or historical, then there is a risk of the whole business becoming merely futile. Assumption क्या कह सकते हैं? It is never very never तो नहीं कह सकते, sometime never without some value. It is never without some value. It is always very valuable. ये भी नहीं कह सकते, always भी नहीं कह सकते। जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, नहीं ये भी नहीं हो सकता। बी पार्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नॉट मेनी रिसर्चर्स रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। द रिसर्च रिजल्ट is always valuable to the can be of the value of intelligent, must always not many research results can be of value to any research result can be of value to an, कोई भी रिसर्च जो है रिजल्ट वैल्यूएबल हो सकती है। नेक्स्ट पैसेज, how best can the problems of floods and droughts be addressed so that the losses are minimal and the system becomes resilient?
In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% of the annual precipitation, during 120 days and too little for the remaining 245 days. This skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. बताइए प्रैक्टिकल, रैशनल और लास्टिंग सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स बना लें, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स, interlinking rivers across the countries, buffer stocking of water through dams and recharge aquifers. D part will be the best option. चलिए 74th question. Where m and n are positive integers, then what is the maximum number of that? Maximum value क्या हो सकती है इस m की? देखो 15 में से 3 into 5 निकलेगा, एक 3 यहाँ से निकल सकता है, ठीक है. फिर यहाँ से 12 आएगा तो उसमें एक 3 निकलेगा, 3 into 4, ठीक है. उसके बाद 9 आएगा जिसमें 2 3 हैं, फिर एक 6 आएगा जिसमें 3 और 2 है, और फिर एक ये 3 है. तो 3 1 2 3 4 5 6. तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? 6 हो सकती है, ठीक है. चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस. ओके, ये वाला क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क. अगर आप लोगों से होता है तो बताना, अदरवाइज आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, क्वेश्चन नंबर 76. वन नॉन जीरो डिजिट, वन vowel and consonant from the English alphabet are to be used in forming a password such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such passwords can be generated? देखो 5 पॉसिबिलिटीज तो पहले वॉवल में आ गई, ठीक है. फिर 1 नॉन जीरो डिजिट लेना है, हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं, ठीक है. उसके बाद हमें कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, तो कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे पास? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करो. 9 5 45, 45 1 is 45, 4 carry 94, 945. C part. Question number 77. There are 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain the coffee and 3 cups contain tea. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? देखो 9 cups हैं टेबल पे, arranged in equal number of rows and columns. मतलब 3 ऐसे, फिर 3 और फिर 3, ठीक है. equal number of rows and columns हो गए. out of which 6 cups are coffee के हैं और 3 cups tea के हैं. In each row, in how many ways they can be arranged so that each row contain at least 1 cup of coffee. Let's say कि हमने कॉफी यहाँ रखी 1 कप, ठीक है. इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है. हमने दूसरी कप ऑफ कॉफी यहाँ रख दी है, 2 कॉफी हमने यहाँ रखी है, लेट्स से कि ऐसे रखी है. इसकी कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं? 3 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, ठीक है. 3 हो गई, और यहाँ पे पूरे में कॉफी ही रहेगी. फिर यहाँ पे कॉफी, यहाँ पे कॉफी, यहाँ पे कॉफी, क्योंकि 6 कप ऑफ कॉफी है ना, तो ये तो एक ही अरेंजमेंट है. टोटल कितनी अरेंजमेंट बन पाई हमारे पास? 7 अरेंजमेंट्स बन पाई हैं, ठीक है. और 3 कप्स ऑफ टी है. अब कॉफी जहां जहां अरेंज होगा वहां पे उसके अलावा बाकी जगहों पे टी अरेंज होगी, ठीक है. अच्छा, ये एक पॉसिबिलिटी हुई 7 की. अब इसी में अगर मैंने ऊपर एक की जगह पे 2 कर दी और नीचे 1 कर दी, तो इसी का डबल हो गया इंटू 2, ठीक है. और फिर अगर यहाँ पर ये इसके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं कि ये वाला यहाँ चला गया, वो वाले यहाँ आ गए, नीचे आ गए, ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं ना. तो कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं? सिर्फ 6 अरेंजमेंट्स हो सकती हैं. जो 2 की जगह पे इसको डायरेक्ट आप 6 करो तो 7 6 42 होता है, राइट. तो ये 42 हो गए. बाकी के और भी टी के अरेंजमेंट्स देखने हैं फिर हमने कि टी कहाँ पे कैसे कैसे अरेंज हो पाएगी. तो वो टी के जब अरेंजमेंट्स आप टोटल करोगे तो आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगा, 54 टोटल हो जाएंगे, ठीक है. Now next question, question number 78. The sum of 3 consecutive integer is equal to their product. How many possibilities are there?
ओनली 1, 1, 2 एंड 3, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिसको आप मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर भी वही आएगा जितना उनका सम आता है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 79, what is the number of numbers of the form 0xy where xy are distinct non-zero digits? 0.xy करना है। अगर यहाँ पर 9 पॉसिबिलिटीज हैं तो हमारे पास यहाँ पर 10 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 भी तो आ सकता है। अच्छा, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स लिखा है और डिस्टिंक्ट्स भी हैं तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज हैं फिर, तो 9 8 जा 72, 72 विल बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, लेट्स डू इट फटाफट से। ए, बी और सी का एवरेज 40 kgs है, बी, डी और ई का एवरेज 42 है। द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, तो हमें ए बी सी डी ई एफ का वेट निकालना है। तो ए, बी और सी का टोटल वेट कितना हो गया, 120 kgs हो गया, और बी, डी और ई का वेट कितना हो गया, इंटू 3 कर दो, 126 हो गया, ठीक है। और बी और एफ इक्वल है, तो बी की जगह पे अगर मैं एफ भी लिख दूंगी तो भी 126 ही आएगा सब, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ टोटल कर दो 246, कितने जने हैं ये, एवरेज वेट कितना आएगा, डिवाइड करेंगे 6 से, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 41 kgs, सी पार्ट। वेरी वेल डन एवरीवन, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी फॉर सो लॉन्ग। आज की वीडियो थोड़ी और लंबी हो गई है बिकॉज हमने आज पेपर खत्म करवाना था। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगी 2023 का, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे साथ PYQ सॉल्व करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड आई विश यू कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और आप अपना UPSC 2026 क्लियर कर पाओ। Okay, I'll see you in the next class. तब तक के लिए bye bye everyone. Take care.